ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೋರೋಣ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹಸ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ತನೇ ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸು. ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು, ಪ್ರೇರೇಪಿಸು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೀರ್ತನೆ 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. भजन संहिता 48वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में हम पढ़ेंगे. बारी बारी हम पढ़ेंगे. Psalm 48 will read as responsive reading. हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है. सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है. राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे पर है. उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है. क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए. उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबराकर भाग गए. वह कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ियाँ उन्हें होने लगी. तो पूर्वी वायु से तर्शिश के जहाज़ों को तोड़ डालता है. सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसे हमने सुना था वैसा देखा भी है. परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा. है परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है. है परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है. तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है. तेरे न्याय के कामों के कारण सियोन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियाँ मगन हो. सियोन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो. उसके गुम्मटों को गिन लो. उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ. उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको. आखिरी वचन हम साथ पढ़ेंगे. क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा. परमेश्वर आशीषित करे. प्रार्थನೆ ಮಾಡೋಣ. हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे. प्रार्थನೆ आद ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ परलोक प्रार्थना ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. प्रार्थना होने के पश्चात हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना साथ कहेंगे. लेट्स प्रे. हम आपके पवित्र चरणों में हमारे सिरों को झुकाकर आपको धन्यवाद करते हैं. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನಗೆ ಕರ್ತನೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ,
ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ, ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆನಿಟ್ಟು ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಡೆಸಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿರುವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ಕೇಳು. ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ತಂದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಬರುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡೆಸು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯೌವನಸ್ಥರು, ಪ್ರಾಯಸ್ಥರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ರೋಗಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಶೋಧನೆಗಳಾಗಲಿ, ಸೈತಾನನ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಜಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲಾರ್ದಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದಿನ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನೀನು ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನ. ಅದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇವಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಭೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಬಲ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಡೆಸು. ಮಾತುಗಳದ ಕರ್ತನೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಳಿಸು, ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ, ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, DS ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಸಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಮೇಡಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಲಶಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ,
ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರಶಂಸಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6ನೇ ವಚನ. In the Old Testament, the reading is taken from Proverbs chapter 3 verses 1 to 6. Proverbs chapter 3 verses 1 to 6. नीति वचन 3रा अध्याय 1 से 6 वचन तक पुराने नियम का पाठ होगा. नीति वचन 3रा अध्याय 1 से 6 वचन तक. उसके बाद हम नए नियम का भाग को पढ़ेंगे. लूक रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 41 से 50 वचन तक. लूक 8 41 से 50. In the New Testament, we'll be reading from Gospel according to Saint Luke, chapter 8, verses 41 to 50. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41ರಿಂದ 50ನೇ ವಚನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. नीति वचन 3रा अध्याय 1 से 6. है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा. कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा. तू अति बुद्धिमान होगा. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. परमेश्वर इन पढ़े वचनों को आशीषित करे. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41ರಿಂದ 50ನೇ ವಚನ. In the New Testament, Gospel according to Saint Luke, chapter 8, verses 41 to 50. I'll be reading it for you. And there came a man named Jairus, and he was an official of the synagogue. And he fell at Jesus' feet and began to implore him to come to his house. For he had an only daughter, about 12 years old, and she was dying. But as he went, the crowds were pressing against him, and a woman who had a hemorrhage for 12 years and could not be healed by anyone came up behind him and touched the fringe of his cloak, and immediately her hemorrhage stopped. And Jesus said, "Who is the one who touched me?" And while they were all denying it, Peter said, "Master, the people are crowding and pressing in on you." But Jesus said, "Someone did touch me, for I was aware that power had gone out of me." When the woman saw that she had not escaped notice, she came trembling and fell down before him, and declared in the presence of all people the reason why she had touched him, and how she had been immediately healed. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." While he was still speaking, someone came from the house of the synagogue official, saying, "Your daughter has died. Do not trouble the teacher anymore." But when Jesus heard this, he answered him, "Do not be afraid any longer. Only believe, and she will be made well." May the good God add his blessings upon the reading of the scripture. Amen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे. हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु. आपके वचनों का मनन करते समय विनती करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रहे और आपके वचनों का ज्ञात हमें कराएं, ताकि हम आपके वचनानुसार अपने जीवनों को व्यतीत करते हुए आपकी इच्छा पूर्ति कर सके. धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಈ ದಿನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಚನ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. एक वचन जो अगर आप चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप को देखें तो उसमें विलास कबाड़ी अंकल ने एक वचन डाला है यिर्मयाह के पुस्तक में से. वो इस तरह है कि धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखता है. Blessed is the one who trusts in the Lord and whose confidence is in him. ये सच बात है और यही सच्चाई है कि धन्य है वो व्यक्ति जो उस पर भरोसा करता है. देखिए, अगर हम सारे लोग प्रभु यीशु को मानने वाले हैं, उसके ऊपर हम कहते हैं कि हम निर्भर हैं, हम भरोसा करते हैं. यदि मैं आपको आकर पूछूं कि आप परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, तो आप कहेंगे हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो हमारा प्रभु है, हमें वो चलाता है, हमें वो जो हमारी आवश्यकता वो पूर्ति करता है, हमें उस पर पूरा भरोसा है. प्रियो, ये वचन, ये बात हम सारे लोग कहते हैं, लेकिन जब समस्या उत्पन्न होती है तो प्रभु यीशु के ऊपर का भरोसा डगमगाने लगता है. उसके ऊपर जो विश्वास तुमने रखी है, उस विश्वास को आप उसके विश्वास में स्थिर नहीं रहते. आप अपनी सोच विचार पर चलने लगते हैं. ये मनुष्य की सच्चाई है. बहुत ही कम लोग हैं जो उस पर पूर्ण भरोसा करते हैं. इसीलिए पर प्रभु नए नियम में इस तरह कहता है कि चुने हुए तो बहुत है, तो बुलाया गया तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है. बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए बहुत कम है. वो अगर प्रभु इस तरह कह रहा है तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि बहुत कम लोग हैं, और उन कम लोगों में हमारी अस्तित्व को हमें बनाए रखना है. उन कम लोगों में हमारी गिनती होना है. अगर गिनती होना है हमारी, तो ज़रूरी है कि हम उस परम प्रधान परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखें. देखिए, एक व्यक्ति सवेरे सवेरे, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ. सवेरे सवेरे एक व्यक्ति जॉगिंग कर रहा है और एक ऊंचा, थोड़ा पहाड़ की जैसे ऊंचाई पर वो भागते हुए या जॉगिंग करते हुए जा रहा है, और उसके जॉगिंग में इतना वो मशगूल था कि उसके ध्यान से हट गया कि उस चोटी पे या उस चोटी का किनारे पे वो पहुंच गया है, और आगे थोड़ा खाई है और खाई में वो गिर जाता है. उसके ध्यान से हटकर या वो ध्यान हटाता है चोटी के आखिरी चोर पर जाने के बाद, तो वो गिर जाता है. जैसे गिरता है तो वो बीच में, ऊपर से नीचे गिरते समय बीच में एक पेड़ की टहनी निकला हुआ पेड़ की टहनी है, उस टहनी को वो लटक जाता है, और अब वो ना ऊपर चढ़ सकता है ना नीचे उतर सकता है, बीचों बीच में, और काफ़ी अंतर है, ऊपर नीचे में काफ़ी अंतर है. वो डर कर चिल्लाता है, चीखता है, मदद के लिए पुकारता है. बहुत सारे लोगों को वो पुकारता होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो एक छोटी है, एक पहाड़ का टुकड़ा है, तो वहाँ पर आने जाने वाले लोग शायद बहुत कम होंगे या नहीं के बराबर होंगे. तो ये व्यक्ति जोर जोर से पुकारता है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं. घंटे बीत जाते हैं और तब वापस वो एक जोर से
आवाज़ देता है, कहता है कि अरे कोई है, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, कोई है। तो वो एक आवाज़ सुनता है और वो आवाज़ इस तरह कहता है कि हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और उसके बाद ये व्यक्ति उस आवाज़ से कहता है, क्या तू मुझे देख पा रहा है? तो आवाज़ इस तरह आती है, हाँ मैं तुझे देख पा रहा हूँ। और ये व्यक्ति कहता है, अरे मैं तो तुझे देख नहीं पा रहा, तू है कौन? मुझे मेरी मदद कर, तू है कौन? तो आवाज़ कहती है, ये आवाज़ इस तरह होता है कि मैं परमेश्वर हूँ, प्रभु हूँ। तो कहते हैं, प्रभु परमेश्वर, तू मेरा यीशु है? हाँ हाँ मैं यीशु हूँ। तो तू मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, कहाँ पर है तू? तो प्रभु यीशु कहता है कि मैं सारी जगह हूँ, मैं हर तरफ हूँ। तो ये कहता है कि प्रभु यदि यदि तू मुझे बचाएगा, यदि तू मुझे सुरक्षित उतारेगा, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे कोई पाप नहीं करूँगा, कि अब से मैं अच्छी अच्छी कर्मों को करूँगा, मैं अपने जीवन को सुंदर रखूँगा। तो प्रभु कहते हैं कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, तेरे वादे सब बाद में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले तुझे उतारना है। तो इसीलिए अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तू करेगा? तो ये बोलता है हाँ करूँगा। तो ठीक है, तो वो टहनी छोड़ दे, वो टहनी को जिससे तू लटका हुआ है वो छोड़ दे। ये व्यक्ति अब डर गया कि अरे ये टहनी के सहारे से तो मैं अभी अब तक हूँ, अगर ये छोड़ दूंगा तो मेरा क्या हर्ष होगा। और ये व्यक्ति कुछ देर एकदम शांत होकर फिर जोर से चिल्लाता है, अरे दूसरा कोई है क्या वहाँ पर ऊंचाई में, मुझे मेरी मदद करो, दूसरा कोई है क्या, कोई है क्या दूसरा? और प्रभु की आवाज़ को खो देता है। प्रियो, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हम बहुत सारे बार या बहुत सारे समय हम कहते तो हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप परमेश्वर पर क्यों भरोसा करना है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो राजा सुलेमान ने बहुत सुंदर रीति से इस तरह नीति वचन में लिखा है। वो कहता है कि प्रभु पर भरोसा कर ताकि वो तेरे मार्गों को सीधा करे। हम अपने कार्य अगर हम भरोसा उसके ऊपर रखेंगे तो वो हमारी मार्गदर्शन वो करेगा। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपके जीवन में आप बहुत बड़ा व्यत्यास को देखेंगे। और मैं आज इस विषय में 3 बातें कहना चाहूँगा जो आपको उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करेगी। पहला ये कहता हूँ कि हमें उस पर संपूर्ण विश्वास रखना है। वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन गॉड्स केयर। परमेश्वर के हाथों में या परमेश्वर के समक्षता में हम अपने आप को या हमारा विश्वास उसके ऊपर संपूर्ण रखना है। अगर हम भरोसा इस शब्द को जो इस पद में उपयोग किया गया है, इस शब्द को अगर हम इब्रानी भाषा में देखें, पौराणिक भाषा में, इब्रानी भाषा में देखें तो उसका अर्थ यह है कि तुम अपने सारा वजन को उसके ऊपर लाद दो या वजन को लाद दो।
वजन को डाल दो। देखिए, एक उदाहरण इस तरह है कि रात में आप जब सोने जाते हैं तो आपके जो पलंग का गद्दे के ऊपर, बेड के ऊपर आपका पूरा भार डाल के सोते हैं, आप पूर्ण रीति से सोते हैं। बच्चे अगर कूदते हैं, दिन में मस्ती करते हैं, तो उस गद्दे के ऊपर, पलंग के ऊपर चढ़कर उछल कूद करते हैं। क्या आपने उस समय एक पल भर के लिए क्या आपने ऐसा सोचा कि ये पलंग या ये बेड जिसके ऊपर मेरे बच्चे कूद रहे हैं ये सही नहीं है, या ये टूट जाएगा, या ये इन बच्चों को गिरा देगा? या आपने ऐसा सोचा है कि मैं इस बेड के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, तो इसीलिए एक पैर आप ज़मीन पर रखकर एक पैर आप बेड के ऊपर रखकर सो पाएंगे? आपको पूरा भरोसा करना पड़ता है। आप सोने के लिए, पूर्ण विश्राम के लिए उस बेड के ऊपर, आप उस बेड के ऊपर आपको भरोसा है, आप सुरक्षित सो जाते हैं। और जब परमेश्वर पर आप अपनी पूरी बार आप जब डालते हो, वजन डालते हो, तो परमेश्वर यहाँ पर इस वचन के आधार पर सुलेमान राजा के शब्दों में इस तरह कहता है कि संपूर्ण हृदय से या पूर्णता से उसके ऊपर हमें अपने आप को, या उसके हाथों में अपने आप को हमें अर्पण करना ज़रूरी है। यदि हम संपूर्ण हृदय से न करें, अगर हम थोड़ा विश्वास उसके ऊपर रखें, हाफ हार्टेड हम कहते हैं, आधा हृदय से विश्वास करें, तो इसका मतलब है कि हम पूर्ण हृदय से उसके ऊपर हम संकोच कर रहे हैं, या उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, या हमारा विश्वास उसके ऊपर नहीं है। यहाँ पर आप परमेश्वर पर भरोसा या परमेश्वर पर विश्वास करना योग्य है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं परमेश्वर पर क्यों विश्वास नहीं करूं, भरोसा नहीं करूं? क्यों परमेश्वर पर मैं भरोसा नहीं करूं? क्या इस प्रश्न को कभी आपने सोचा है? प्रियो, अगर आप मान लीजिए आपके बच्चों को, आपके जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, इनको आपने उनके ऊपर आपको भरोसा है, ठीक है, और मान लीजिए कुछ ऐसी घटना घटती है और आप बच्चे को जब उस घटने के बारे में जब आप पूछते हो, तो बच्चा सही जवाब या सही दृश्य वो दिखाता है या नहीं दिखाता है, आप पहचान लेते हैं, आप जान लेते हैं कि वो किस तरह उस वाक़यात को किस तरह आपके सामने वो रख रहा है, उससे आप पहचान लेते हो। और फिर यदि आपको लगा कि ये झूठ बोल रहा है, तो आप उस पर भरोसा नहीं करते। परमेश्वर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर वो ना कभी तुम्हारा भरोसा तोड़ा है और ना ही कभी तुम्हें शर्मिंदगी में लाया है। आप देख लीजिए आपके जीवन भर जब कभी आपने परमेश्वर पर भरोसा किया है, तो परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। यह आपकी गवाही है, आपकी गवाही है। आप लोगों को बड़े शान से कहते हैं
कि प्रभु ने मुझे इस तरह चलाया, मैं ऐसा किया, तो प्रभु के साथ प्रभु के समक्षता में मेरी प्रार्थना थी और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे चलाया। ये आप कहने वाले लोग हैं, ये आपकी गवाही है। तो इस गवाही के वजह से, या कोई ऐसा गवाही आपके पास है जहां पर आप ये कह सके कि परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे जीने के लिए, या मुझे एक दिन की एक वक्त की रोटी भी मेरे नसीब में नहीं है, मैं नहीं खा पा रहा हूँ, मैं नहीं जी पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ऐसा आपकी गवाही है? कभी परमेश्वर के नाम पर कभी आपने परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद कभी आपकी समस्या का परिहार नहीं हुआ? ऐसा कुछ है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना करने के बावजूद भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, तो ये गलत है, क्योंकि हमारी सोच और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की सोच मेल नहीं करता। हम उसकी समझ को कभी समझ नहीं पाएंगे। वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहता है, वो अच्छा ही चाहता है। इसीलिए तो आज हम जीवित हैं, इसीलिए तो आज हम सुरक्षित हैं। कुछ परिवार में हमारे कुछ मेंबर्स दुखी होंगे, उनके प्रियजनों को खो चुके हैं, लेकिन ये परमेश्वर की योजना है। हम अब समझ नहीं पाएंगे, हम उस पीड़ा में हैं, अब समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे, या परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में होते हुए हम देख पाएंगे। तभी हम कहेंगे कि परमेश्वर ने जो कुछ किया अच्छा ही किया। प्रियो, इसीलिए सुलेमान राजा कहता है कि तुम अपने सोच पर मत रहो, तुम अपने सोच पर मत रहो। दाऊद राजा का उदाहरण देखें। छोटा सा बालक दाऊद जब गोलियत को मारने गया तो उसके सामने एक बड़ा चैलेंज, लेकिन वो इस तरह का कि मैं प्रभु पर भरोसा करके मैं जा रहा हूं, मेरा भरोसा प्रभु में है। और क्या लिया हथियार उस राक्षस को मारने के लिए, उस गोलियत को मारने के लिए? बस 5 पत्थर घुमा घुमा कर मारा, हम उगाते हैं। और नोहा, उसका भरोसा देखिए, वो परमेश्वर पर किस तरह भरोसा किया। जब वो रेगिस्तान में था, जब वो उसके इलाके में था, परमेश्वर ने उसे कहा कि नाव बांध, नाव बना, बड़ी उसको मेजरमेंट दिया और वो नाव की तैयारी में लग गया। एक बूंद पानी या बरसात नहीं बरसी, वो नाव बांध रहा है, तो लोग उसके मजाक उड़ा रहे हैं। तो लोगों की तरफ नहीं देखा, बल्कि उस परमेश्वर की आवाज को उसने सुना और उस पर भरोसा किया और नाव बांधा। बाद में देखते कि वो नाव परमेश्वर की योजना में तैयार होकर नोहा और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। प्रियो, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति संसार में परमेश्वर ने भेजा था, ये जो व्यक्ति था सुलेमान राजा, तो ये कहता है कि बस परमेश्वर पर भरोसा करो और उसकी आज्ञा का पालन करो। जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो 3-4 बातें हमारी ध्यान में हम रखना है। पहली बात कि हम अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए।
छठा वचन अगर हम देखें तो पर उसके अनुसार कि हम अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पण करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे हर विषय में हम परमेश्वर की तरफ देखते रहना चाहिए, भरोसा करते रहना चाहिए। हर विषय, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो हमारी आर्थिक स्थिति में हो, चाहे हमारे कामों में हो, चाहे हमारे पढ़ाई में हो, चाहे हमारे खेल कूद में हो, चाहे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम उसके ऊपर भरोसा करते हुए उसके उद्देश्य को समर्पित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में बहुत सारी बार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर कंफ्यूज होते हैं और हमारी बुद्धि को लगाते हैं और हम ये सोचते कि ये छोटी बातें परमेश्वर को क्या बताना, हम ही सुलझाएंगे। परमेश्वर के पास सिर्फ बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें समस्या होगी तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। नहीं प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी बड़ा चीज़ हमारा वो उसके सामने छोटा ही है। हमारा बड़ा चीज़ उसके सामने छोटा है। तो वो हमारे मैं ये कहना चाहता कि वो हमारे हर बातों को ध्यान देगा अगर हम उसके उद्देश्य को उसके परमेश्वर के उद्देश्य को हम अपने आप को समर्पण करेंगे तो, या हम परमेश्वर के इच्छा अनुसार परमेश्वर के जो प्लान है उस प्लान को हमारे जीवन में होने के लिए समर्पण करना है। परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में होना समर्पण करना है। वो इस तरह है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में ब्लैंक पेपर पे साइन करके देना है और परमेश्वर उसे चलाए। हालांकि ब्लैंक पेपर पर कोई साइन नहीं करता। अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट के ऊपर कोई आपको कहे कि साइन करो, आप बोलेंगे नहीं मुझे पढ़ना है। पढ़कर आपको समझेगा नहीं उन शब्दों को, फिर भी आप ये दिखाएंगे कि मैं पूरा समझ गया और साइन करते। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तू पढ़ना भी नहीं, समझना भी नहीं, क्योंकि वो तेरे बस की नहीं है। तो बस तेरा जीवन मेरे हाथों में दे, मैं तुझे चलाऊंगा। ये बातें, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हम अर्पण करते हुए हमारे जीवन, जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में उसकी तरफ देखिए। दूसरा, हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार, दूसरा मैं कुछ पल पहले मैं कहा कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम अपने आप को नियंत्रित करें। वी शुड बी कंट्रोल्ड बाय गॉड्स विल। जैसे उदाहरण के लिए आप इस समय न्यूज़ अगर देखते रहेंगे तो पानी की जहाज पर, हवाई जहाज जो युद्ध के लिए उपयोग होता है, वो आप देखे होंगे टीवी में कि बड़े बड़े पानी का जहाज, बड़ा बड़ा जहाज, उसके ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इस जब एक सर्वे किया गया, जो फाइटर प्लेन के पायलट्स हैं, उस जहाज के, पानी के जहाज पर उतरने वाला फाइटर प्लेन्स, उन पायलटों के हृदय के बीट को, पल्स को देखने के लिए एक मशीन लगाया गया। वे लोग जब युद्ध के मैदान में थे तो उनका हार्ट बीट नॉर्मल था, और जब वो लैंड कर रहे थे उनका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा, वो लोग डर के, या हार्ट बीट बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उनके सामने ये है कि वो जो छोटा सा जो लैंडिंग का एयर स्ट्रिप है वो आगे आगे निकलते जा रहा है, और ये लोग उसके ऊपर उतरना है। और अगर उतरते समय मान लीजिए थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो उनके जान को खतरा है। इसीलिए वहाँ नीचे एक व्यक्ति रहता है जहाज पे, और वो अपने हाथ में एक
रैकेट की तरह, बैडमिंटन की रैकेट की तरह या टेबल टेनिस की रैकेट की तरह वो अपने हाथों में, दो हाथों में पकड़ के वो इशारा करता है, और उसको वो पायलट्स उसको देखते हैं कि वो किस तरह इशारा कर रहा है और वो क्या बता रहा है कि स्पीड आए या उतरे या न उतरे या वापस उड़े। तो उसके इशारों पर, और वो जैसा इशारा करता है वैसे वे लोग उसके इशारों से उतरते हैं, उससे प्लानिंग हो जाती है। अगर वो व्यक्ति से ये लोग नज़र हटा दे पायलट्स, तो या तो ठोक देंगे या तो आप समझ सकते हैं दुर्घटना। ये है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को या अपने हर विषय को परमेश्वर के हवाले करते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या उसकी तरफ देखते हुए हम चलें, तो वो हमें सुरक्षित हमें उतारेगा, चलाएगा। प्रियो, हमारे हर प्रश्न का उत्तर या हर हमारा समस्या का उत्तर परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन अगर हम पढ़ें नियमित रूप से, तो उन वचनों के जरिए हमें परमेश्वर हर दिन बातें करेगा, हर दिन हमारे समस्या को सुलझाएगा, हर पल हमें वो बल देगा। और परमेश्वर हमारे लिए कभी द्वार बंद करता है, कभी द्वार खोलता है। परमेश्वर हमारे मार्गों को वो कभी रोकता है, कभी वो चलाता है, क्योंकि वही जानता है कि मेरा जीवन का मार्ग किस तरह होगा, या मेरे मार्ग में कितने पड़ाव हैं, या उस पड़ाव को मैं कैसे मुझे निकलना है, ये मैं नहीं देख सकता, वो देख सकता है, पर प्रभु देख सकता है, परमेश्वर देख सकता है। इसीलिए हमारी दृष्टि उसकी तरफ लगाकर हमें सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे जाना है। कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी कभार मेरे साथ भी हुआ है, वो ये कि मैं परमेश्वर के वचनों का प्रचार करने के लिए तैयार करता हूँ। तैयार करते समय मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये वचन बहुत बेहतर है, और देता हूँ, परमेश्वर के वचन को बांटता हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार, मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि मेरा संदेश किस तरह जा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ है, बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि मैं जो अपनी बुद्धि से इन बातों को कहना या इस वचन को बताना, ऐसा सोचकर अगर मैं आया पुलपिट पे, तो कभी कभार उन बातों को छोड़कर, भूलकर, या परमेश्वर उन बातों को सामने न लाते हुए कोई दूसरी बात को ले आता है, जो शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन संदेश होने के बाद आप लोगों में से कितने लोगों ने आकर मुझसे कहा कि भैया बहुत अच्छा मैसेज था, मुझे छुआ है। प्रियो, उस समय मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि अरे मैं तो ये मुझे ही इतना बहाया नहीं, तो ये शायद प्रभु उस व्यक्ति को या उस समय उन वचनों को परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता होगा। प्रियो, इसीलिए हम अपने सोच से न चलते हुए, हम अपने ताकत पर न निर्भर होते हुए, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अगर हम चलें, तो निश्चित हम सुरक्षित रहेंगे। धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो जो उसके ऊपर विश्वास रखता है। सुलेमान राजा भी कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा कर, वो तेरे मार्गों को सीधा करेगा। प्रियो, इस समय इस दुनिया में हमें केवल एक ही काम करना है, उसके ऊपर भरोसा करते हुए हमारी हर क्षण को हमें बिताना है।
उसके समक्षता में हमें उपस्थित रहकर हर क्षण को बिताने के लिए अपने आप को हमें योग्य बनाना है। उसकी तरफ हमें देखना है, उसकी इच्छा अनुसार या उसकी इच्छा अनुसार अपने आप को समर्पित करना है, उसके वचनों का ज्ञात करना है। तब हम सही मायने में उसके लोग कहलाएंगे, उसके भरोसे के काबिल होंगे। वो कहता है छोड़, छोड़ दो। वो कहता है पकड़, पकड़ लो। अगर वो कहता है कि चल, तो चले चलो। वो कहता है रुक जा, तो रुको। उसकी आवाज़ सुनना है तो उसके वचन की ज्ञात होना ज़रूरी है, या उसके वचन को निरंतर पढ़ते रहना ज़रूरी है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आमेन। ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯವಾದ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಟ್ರೆಜರರ್, ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ್ವಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಿದೆ. 19th ಬರ್ತ್ಡೇಸ್: 19th ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, 19th ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ವಿಶಾಲ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, 21st ಶಾರನ್ ವೇಗಾಸ್, 22nd ಸವಿತಾ ನತಾನೆಲ್ ಕ್ಯಾನನ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಣ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಸುತಾರ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕುರಿ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಲೋಬೋ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಅರ್ಥರ್ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಜೋಯಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೋಹರ್ ಅಂಕಲ್, ಹೇಮಾ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಣ್ಣ ಮಗ, ಸೊಸೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಮೇ गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रार्थना ಮಾಡೋಣ. आइए हम प्रार्थना करें. परम प्रधान परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं और आपके समक्षता में इन प्रियजनों को अर्पण करते हैं जो अपनी जन्मदिन इस सप्ताह में मना रहे हैं. पिता, हम आपके चरणों में रॉबर्ट हिरेकेरूर, क्रिस्टी विशाल हिरेकेरूर, शैरन वेगस, सविता नथानिल खनन, इन सारे लोगों को अर्पण करते हैं. प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनके ऊपर आपकी दया दृष्टि रखें, आपके अनुग्रह में इन्हें बढ़ाएं. इनके जीवन के क्षेत्र में आप ही रहकर इनकी मार्ग को सीधा करें, चलाएं और पिता होने दे ये प्रियजन हर समय आपके ऊपर भरोसा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सके, ऐसे अनुग्रह करें. उसी तरह प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन प्रियजनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, जो कमज़ोर अवस्था में हैं, जो बलहीनता में हैं. इन सारे लोगों को पिता आपकी अनुग्रह में स्वीकार करें और सुतार आंटी को, कुरी आंटी को, लोबो आंटी को, अर्थर आंटी को और जोएल, इन लोगों को पिता संपूर्ण आरोग्य दे, चंगाई प्रदान करें और आपके बल में इन्हें चलाएं. उसी तरह प्रार्थना करते हैं मनोहर अंकल, हेमा आंटी, उनके दोनों बहू, उनका छोटा बेटा, इन सभी को पिता आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं. इन्हें आपकी स्पर्श, आपकी चंगाई का स्पर्श इन्हें होने दे और आपकी सांत्वना इन्हें मिले और इस परिवार में पिता आपकी उपस्थिति रखें. पिता इन लोगों को
आपके नाम से मुद्रित करते हैं। उसी तरह यदि हमारे कलीसिया में आपके लोगों में से कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, पिता इन सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विनती करते हैं प्रभु कि इनको आपकी चंगाई प्रदान करे। पिता, हम भाई मार्टिन अर्थर के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आपकी चंगाई दे, आपकी गालतों का स्पर्श होने दे और वो संपूर्ण चंगाई पाकर प्रभु की गुणगान गा सके, ऐसे अनुग्रह करें। फिर एक बार पिता, हम सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारी अगुवाई करें, हमें चलाएं। यदि आपकी इच्छा में है तो हम फिर एक बार अगली सप्ताह हम आपकी आराधना करने के लिए योग्य ठहरें, ऐसे आशीषित करें। धन्यवाद करते हुए सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते हुए प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते करके सुन और दया से कबूल कर पिता, ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುಮತಿ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.